How long have you been jumping now? 5 years? 4 years, 4.5 years. Yeah. How many jumps has it been? It's 187 और पिछले साल मैंने पीठ उड़वाई थी तो उसके बाद से 8 महीने से सर ज़मीन पे बैठा हूँ तो 8 महीने से कूदा नहीं वरना अभी तक आई शुड हैव हैड लाइक 250-300 तो होने चाहिए थे. You've done 187 jumps and on the last one. I broke my back. वो अलग कहानी है. I rode like 18,000 kilometer in 3 months. So it on a bike? No, everything. Started with a bike to Tibet. So मैंने बाइक चलाई इंडिया से तिब्बत to main Lhasa. I went to Lhasa on a bike and I came back on a bike. ठीक है. It was 4,800 kilometers. उसके बाद मैं गया न्यूजीलैंड. So where is this 4,800 kilometers? Sorry. I drove through India, नेपाल से मैं गया Tibet. Tibet, हाँ. And I drove to Lhasa. Lhasa is inside Tibet, no? Inside Tibet, the capital of Tibet. Capital of जहाँ Tibet, पे yes, right. दलाई लामा का मेन पोटाला पैलेस है, where the दलाई लामा comes from. मैं वहाँ गया जहाँ पे पिछले सारे दलाई लामा के वो में बने हुए हैं अभी भी pyramids there, where their last Tombs there. Yeah, that's the thing. Tombs are still in the Potala Palace. Can you search this? I'm actually very and then so you did 4,800 kilometers. 4,800 kilometers Tibet in and out. So basically I rode the bike on the north face of Mount Everest. As when you go to Mount Everest base camp, you will go from Nepal na to the south face जाएगा. That's a 12-day hike. On the north face, you can fucking ride a bike to the base camp. I have heard, मेरे को actually Arjun Vajpayee was telling me very similar stuff. कह रहा था चाइना के साइड से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हिमालयाज में हम कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते. जो हमारे लिए एक ये सेंस होता है ना भाई पहाड़ में है तो रिमोट होगा. उन लोगों ने 5-star मतलब शहर बना रखे हैं पहाड़ में 8-8 हजार मीटर 7-7 हजार मीटर. Absolutely. 8-7 ज्यादा बोल रहा हूँ मैं. बट ही वाज लाइक कि ब्रो तू इमेजिन नहीं कर सकता कसिनो पार्टी चल रही है 6,000 मीटर पे फुल पावर है ना. बट द थिंग इज वाजपेयी गया कभी चाइना साइड तिब्बत गया वो बोल रहा था बिकॉज इट्स क्रेजी. What you see is a ghost town. हाँ, right, exactly. That's what he also said. He's like, वो पूरा शहर बना होगा, but it's a ghost town. Yes. There's nobody there. Yes. So it's very eerie like that. Yes. Right? Yes. Wow. But tarmacs, लिटरली तो ऐसा लगेगा वो चंडीगढ़ में है. So they are like grids बने हुए हैं. हाँ. You went to Ladakh, Leh? I have, yes. Yes. So just think Chandigarh in Leh. That's Tibet. Okay, wow. So they have like grids, red lights, बड़े red lights, cross sections, zebra crossing, people following rules. काफी crazy है. और मतलब आसपास वैसे ही पहाड़ जैसे लेह के आसपास. Yeah, it's Ladakh with Chandigarh setup. Damn. मैं नेपाल से गया पूरी सड़कें टूटी हुई थी. ठीक है. खड़े होकर चला रहे हैं बाइकें. As soon as I cross the border and enter Tibet, अगले 4,000 किलोमीटर tarmac. End to end tarmac. और चलाने में मजा आएगा. मतलब लग ही नहीं रहा था कि लद्दाख टाइप रोड पे चला रहे हो. थोड़ा तो टूटे. तो हम लोग मजे लेने के लिए ऐसे ऑफ रोड घुसा देते थे. क्योंकि मेरे साथ गोरे भी थे ना. गोरों को चलती हम लोग एक दो बाइक भी तोड़ी. अच्छा इस चक्कर में सिर्फ मजे लेने के चक्कर में क्रेजी. that was quite fun but yeah man. तो मैंने वो किया बाइक राइड. फिर मैं साला वहाँ से वापस आया and I went to न्यूजीलैंड. वहाँ मैंने कैरावान ली and I drove another 3,000 kilometers in South Island. तो मैं बाइक पे था वहाँ से मैं गाड़ी में चला गया. फिर मैं वापस आया 5-15 दिन की रेस्ट मारी और सीधा इंडिया टूर पे निकल गया 16,000 किलोमीटर अक्रॉस इंडिया. on my car. In your car? Yeah, in my truck. So I drove it from Palampur to Kanyakumari to back to Palampur. और यार उसमें ना वो क्या हुआ, it started with a small pain under my knee and I kept twisting my back to so much level कि मेरा मतलब slip disc 3 जगह, disc bulge 2 जगह, muscle atrophy अलग हो रखी है. So it just put me on a hyperdrive of muscle breakdown. तो फिर मेरा 8 महीने कटा बिस्तर पे बढ़िया, टूटा मस्त. आई एम स्टिल एट इट ओनली. चलता है लटक लटक के टांग बट इट्स लाइक यू हैव टू यू जस्ट रियलाइज व्हाट यू सेड ना. आज तक मेरे साथ हुआ नहीं. आई ऑलवेज टू कीप ट्विस्टिंग माई बॉडी. मतलब मैं कभी पहाड़ चढ़ गया कभी नीचे कुछ भी चल रहा है बट नाउ आई रियलाइज कि हाँ यार दिस इज अ मॉर्टल बॉडी राइट. यू गॉट टू रिस्पेक्ट इट, गिव इट टाइम टू ब्रीथ. आई थिंक वो वाली चीज़ बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई मेरे लिए पर्सनली. आई हैव अ वेरी टाइनी एंड स्टूपिड एग्जांपल इन कंपैरिजन. एक बारी ना मेरा हाथ I was grown up enough, I was like maybe 21-22, कांच के आर पार हो गया and I had to get ligament reconstruction और tendon reconstruction. तो proper surgery वर्जरी हुई. उंगली लटक गई होगी आज भी. मतलब ये वाली उंगली पूरी बंद नहीं होती. and this finger is a मतलब अब कहीं कांच गिरता भी है ना तो मैं सीधा वहाँ उठता हूँ 2017 में. and this is what it told me. I was like उससे पहले तक क्या पता होता है ब्रो. बकचोदी कर रहे थे, किसी का बर्थडे था, वो अंदर बाथरूम में बनता, उसके मुंह पे केक मारना था भाई. इस चक्कर में अस्पताल के बाद सर्जरी अलग भाई. तो वो जिस तरीके से वो स्नोबॉल हुआ ना, आई रियलाइज्ड कि बॉस या लाइक यू नीड टू बी मोर केयरफुल विद योर बॉडी. एंड दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग हैज, आई डोंट नो व्हाट आई थिंक अबाउट इट. लाइक इट्स नॉट लाइक आई वांट टू डाई विदाउट डाइविंग ऑफ अ प्लेन. बट इट्स नॉट लाइक मेरे को कोई फोन करके बोलता है चल कल स्काई डाइविंग, जा यार यहाँ से दिमाग मत लगा, स्काई डाइविंग चलते हैं. सो यू नो आई एम इन दैट वियर्ड ग्रे स्पेस. बट व्हाट इज योर एक्सपीरियंस 187 टाइम्स?
By like, I'll be very honest with you. Mike. Yeah. I'll be. This is the perfect place, right? Yeah. But if you move up and back, just like carry this. Yeah. I'll be very honest with you, bhai. Skydive just didn't happen on a great day, right? 2018 में I got my scuba certification. 2020 तक I got into snowboarding. So it was just a progression of अभी भी नहीं मरा तो मैं कहीं तो मरूंगा. Now the thing is bro, वही बोलते हैं ना, there is no difference between you and me. मेरा बस टॉप लाइन बढ़ता जा रहा है क्योंकि मुझे पता है कि अभी भी नहीं मरा तो और थोड़ा पुश आउट. आई टेल यू फॉर एग्जांपल, लोग स्नोबोर्डिंग करने जाते हैं, इंडिया की बात कर लेते हैं, गुलमर्ग चले गए. मुझ जैसा बंदा वर्स्ट के सिनेरियो हिमाचल कर लेगा. दिस विंटर्स आई वाज इन स्पीति वैली राइडिंग 4800 मीटर्स अकेला अपने दोस्त के साथ स्नोबोर्ड पे. वी आर राइडिंग स्पीति वैली. लोग जो वैली घूमने जाते हैं ऑफ रोड की गाड़ियां लेके, उसके सामने के पहाड़ पे मैं और मेरा दोस्त चढ़े हुए अकेले नीचे आने के लिए, और 2 बंदे हैं. पता है अगर चल पड़ा पहाड़, एवलांच आया, वी आर डेड. Right. But nothing is changing. And now the thing is, world might call it stupid, but for us it is living यार. अब वो जीने का मतलब ही इतना रीडिफाइन हो चुका है ना कि यू आर लाइक यार, मतलब ठीक है यार, स्पोर्ट्स सीखा है तो एक सर्टन वही ना यार जो गोरों में चलो होती है ना, दैट एड्रेनलिन रश. लाइक आई विल गिव यू, आई हैव डन सो मेनी स्काई डाइव्स, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग बेस जंपिंग. मैं पूरा पढ़ के बैठा हूँ भाई. मेरे को जाना है नॉर्वे, मुझे सीखना है बेस जंप. Base jumping is wingsuit. No, it's a jumping off. So wingsuit is base jump plus wingsuit. Acha, okay. But base jump is learning how to jump off a cliff. That's it. Yeah, that's And the you have a biggest parachute? science. Yeah, with a parachute, but okay. it is very technical. तू plane से कूदता है ना, तो if that is a plane and the plane is flying like this and you jump, you're flying 360 degree. You can go wherever the f you want. Sure. You jump off a cliff. ठीक है, you're only going one way away from the cliff. Right. Anything happens and you turn towards the cliff. तूने पैराशूट खोला, हवा लेफ्ट टू राइट हुई, पैराशूट यू पक करके खोला, और जैसे वो खुला सीधे you are pointing now to the cliff. Then you're going in the cliff. Right. No matter what you do, you're gonna bang that shit and you're gonna die. Right. Death is imminent. So the technique of going away from the cliff is what's taught. Now the thing is, I would have never even thought about doing. मुझे goosebumps आए मैं बोल रहा हूँ. I would have never even thought about doing base jumping 4 years back. But just that top line of death keeps increasing. You're like, yaar, ठीक है, I'm invincible till you feel like fuck, now I'm not invincible. अब मेरी पीठ टूट गई है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ अचानक. हाँ भाई मेरे साथ यही है भाई. अब मैं पिछले 8 महीने से बस पीठ रगड़ता रहता हूँ. मुझे रियलाइज होता है जो मेरे आसपास के लोग हैं वो अपनी पीठ रगड़ते रहते हैं. मेरा इंस्ट्रक्टर था, मुझे एक चीज़ बोलता था कि देख, तू बुढ़ा होगा ना, तू अपने one thing which is the most valuable in your whole body is not your liver, it's not your kidney, it's not your heart, it's your joints. Right. क्योंकि जो तेरे एड्रेनलिन रश है ना, वो तेरे जॉइंट ही फक कर सकता है. और वो सत्य वचन है भाई. जॉइंट्स ने ही लगा के रखी है. अभी कभी कमर पकड़ लो, कभी घुटना पकड़ लो. क्योंकि अगर पेट खराब है ना तो फिर भी पहाड़ चढ़ जाएगा मरते मरते. अगर घुटना खराब है ना, तू नहीं चढ़ सकता वो पहाड़. पेट खराब में आई एम जस्ट गेटिंग दैट विजुअल इन माय हेड. दैट साउंड्स वेरी फनी भाई. कहाँ भागना है थोड़ी देर में. बट वो भी अलग I vibe get है. it though. I get it. I completely get it. हाँ. And I found from hanging out with guys like Arjun and Mr. Jambal, Nice. both. Yeah, he's a legend. Both of them are legends भाई. Both are industry legends. और अर्जुन तो मतलब ऐसे बोलेगा कि यार देख ऐसा है, मैं तो थोड़ा सा ना पागल हूँ, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, मेरे तो थोड़े न्यूरॉन्स मर चुके हैं. वो बोलते बोलते एक्चुअली खो जाएगा. Absolutely. And then he'll be like, मैंने कहा था ना मैं पागल हूँ, and then he just carries on. Like so, High there is a altitude, very भाई. real cost to this shit. High altitude does that. I'm telling you, भाई. Why do I have respect for these guys? Because these guys did it with not for the camera. Somewhere where this is where I get little like वो ना सेल्फ डाउट नहीं आता है, साला मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं कैमरा के लिए कर रहा हूँ. Is this life like, did I just climb Spiti because I had to shoot a video and show the world? Because when probably these guys climbed, इनकी खुद की चुल थी. तो ना अब यही होता है भाई. मैंने look at these guys, I'm like नहीं यार, इन्होंने अपने साला अपने लिए किया भाई. 17 साल की उम्र में वो पहाड़ को चढ़ना, which is one of the toughest in the world. और एक बार नहीं, बार बार going through that mental state changes you as a human यार. मेरा बापू फौजी है. My dad was a part of HAWS, High Altitude Warfare School. My dad did in 92. So my dad learned glacial climbing in the 90s, जब साला सड़कें नहीं होती थी. And that's when my dad tells me यार, हम लोग जो आइस वॉल चढ़ते थे, साला गिरे तो पीठी टूटती थी, ना हेली रेस्क्यू ना कुछ. अब हम लोग बच्चों के चढ़ जाते हैं आइस वॉल, इक्विपमेंट अच्छा, सब अच्छा. तो उससे समझ आता है यार, these past generation, I'll be very soon, 2010 and before that, भाई that was a real time of adventure. अब तो साला कंटेंट हो चुका है सब कुछ. अब सब कैमरा है. हाँ यार अनफॉर्चुनेटली एंड आई टेल यू, मरते भी वही हैं सब. साला मरते भी वही हैं. आई विल गिव यू अ फैक्ट. इन स्काई डाइविंग यू कैन नॉट कैरी अ कैमरा टिल यू डोंट हैव 200 जंप्स. Really? Yeah, 200 solo skydives के बाद you're eligible to take a camera for your skydive. Why? सोच.
तू कूदने जा रहा है, अब तूने कैमरा लगाया सामने, ठीक है, यू आर वेयरिंग योर रिग, ठीक है, अब रिग में टेक्निकल चीज़ है, तो स्ट्रैप वैप बांधना है, अब तू कैमरा दिखा रहा है, ओके दोस्तों मैं जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, एंड इन दैट होल डिस्ट्रैक्शन ऑफ टॉकिंग टू द कैमरा तू अपना ये वाला चेस्ट स्ट्रैप को डबल लूप करना भूल गया। सो दैट मीन जब तू पैराशूट खोलेगा और तेरा पैराशूट तो खींचेगा, तेरा वो चेस्ट स्ट्रैप यूं ही खुल जाएगा। So you cannot lose attention like that. You can, while you're skydiving, तूने अपना पैराशूट क्यों कहता है, पैराशूट में समथिंग कॉल्ड अ पायलट, तो उसको फेंकता है, छोटा पैराशूट हवा में जाता है, फिर बड़ा पैराशूट को खींच के निकालता है बैक से बाहर। तूने छोटा पैराशूट फेंका पर तू डिस्ट्रैक्टेड था, अब जब तूने फेंका उसकी रस्सी निकली और वो उड़ी और सीधी जगह तेरे हेलमेट के कैमरे में घूम गई। अब तेरा पायलट तेरे हेलमेट में अटक चुका है, तेरा बैग से तेरा मेन शूट भी नहीं निकला है, एंड नाउ यू गोइंग फॉर योर डेथ। यू कांट इवन ओपन योर रिजर्व शूट बिकॉज दैट शूट इज स्टिल बिहाइंड देयर। तूने अगर रिजर्व खोला और वो उसमें टैंगल हो गया तो तू डेफिनेटली मरा। So they say that till up to your 200 jump, you build that muscle memory, that awareness that you don't get distracted. For example, you're a driver now. If you're driving at 150 today, you're still aware where to brake to stop it before it hits the roof. That didn't come because you've been driving for 1 year. That came because you've been driving for almost 10 years now. That's the muscle memory. So like you need to build that kind of instinct. Instinct, and that's why they put that to solid state. But in India, पिक अप एनी एडवेंचर स्पोर्ट, यही तो प्रॉब्लम है। पैराग्लाइडिंग में भी जो मरे फिर से क्यों मर रहे हैं, कैमरा पहले निकला हुआ होता है, जो ग्लाइडर वाले भैया उड़ा रहा है उसको अपनी चुल है, वो कैमरा में देख रहा है, वो लेके भाग रहा है। प्रॉब्लम इज बीइंग क्रिएटेड बिकॉज ऑफ नॉट अनस्किल्ड पीपल, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। दैट इज वेयर डेथ हैपेंस। तो वही है भाई, तो व्हेनेवर आई डू एनी एडवेंचर स्पोर्ट्स आई एम वेरी क्लियर भाई कि कैमरा बाद में ठोकेंगे, पहले देख लेते हैं सिचुएशन की जिंदा रहने वाली है भी या नहीं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स नाउ, पहले तो यार हम भी लाइक, एंड आई विल नॉट बी हिपोक्रेट, अपने आप भी बहुत गलती है कि सारी जो मैं तेरे को ज्ञान दे रहा हूँ मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। खुद की टांग तुड़वाई है कैमरा के चक्कर में तो हुआ है, बट दैट्स वेयर एडवेंचर एंड एडवेंचर कंटेंट हैज़ अ वेरी बिग डिस्टिंक्शन। बॉस, अगर आपको हमारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस पसंद है तो आपको पता होना चाहिए हम एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हैं स्पॉटिफाई ऑडियो ओनली प्लेटफॉर्म पर भी। आप चलते हुए, ड्राइव करते हुए, ट्रेन में, सफाई करते हुए, वर्कआउट करते हुए, बातचीत करते हुए हमें सुन सकते हैं अपने कानों में स्पॉटिफाई पे। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्रेस इट, सब्सक्राइब टू अस ऑन स्पॉटिफाई।